Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about large intestine in human. Before this, we have studied that all type of digestion and absorption has taken place in the small intestine part of the human digestive system. The undigested food from the small intestine passes through ileocolic sphincter and enters the large intestine. What are the different parts of large intestine and what happens here? We will discuss. So first of all, parts of large intestine. Large intestine is composed of three main segments: cecum, number one, number two, colon, and number three, rectum. We can see here, this is a part of ileum. This ileum enters the large intestine. Here, at the junction of large intestine and ileum, there is a ileocolic sphincter, the ileocolic valve. From here, this small part, this blind end, this one is cecum, or from the cecum onward, this is all colon. From here onward and up to this, यहाँ तक colon है, और colon का ये वाला हिस्सा जिसमें food moves upward, this is called ascending colon. This one, transverse colon. This is descending colon, this one. And after this, the last part of the large intestine is the rectum, and rectum open to the exterior through anus. Cecum is a blind sac that projects from the large intestine between ileum and colon. This is ileum, this part. Here, this is colon, और ये छोटा सा ब्लाइंड एंड जो है आगे से बंद हिस्सा, ये सीकम है. इसलिए उसने लिखा कि सीकम इज अ ब्लाइंड सैक प्रोजेक्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड कोलोन. सीकम एक ब्लाइंड आगे से बंद सैक है, थैली सी है, दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन से प्रोजेक्ट होती है इलियम और कोलोन के दरमियान. From the blind end of the cecum, there arises a finger-like process called appendix. आप देख सकते हैं ये cecum का blind end, और वहां से ये finger-like projection निकल रही है, इसको appendix कहते हैं. The appendix sometimes get inflamed due to entrapping and then petrification of the food. बसा औकात अपेंडिक्स में फूड ट्रैप हो जाती है, अनडाइजेस्टेड मैटर ट्रैप हो जाता है, उसकी पेट्रिफिकेशन हो जाती है, वो गल सड़ जाती है, और उस वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, और अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम्ड, सोजश हो जाती है उसमें, जिसकी वजह से वो सवियर पेन करती है. इस कंडीशन को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, which has to be removed surgically in many instances. और अगर ऐसा हो जाए तो उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है अपेंडिक्स को.
तो what is cecum? Cecum is a blind sac. Cecum is a blind sac that projects from the large intestine between colon and ileum. From the blind end of the cecum, there arises a small finger-like projection called appendix. Sometimes undigested matter get trapped in the appendix, and after petrification, infection, this appendix get inflamed, इसमें सोजश हो जाती है, and it gives severe pain. This condition is called appendicitis, और उसका वाहद हल यही होता है कि उसको सर्जरी के जरिए रिमूव कर दिया जाए. Then second part of the large intestine is colon. जैसे मैंने पहले बताया कि this colon consists of ascending colon, transverse colon and descending colon. Large intestine का largest part colon है that comprises of ascending, transverse and ascending colon. Ascending colon, transverse colon and descending colon. What are the functions which occur here in the colon? Absorption of water and salts. The material that passes from the small intestine to large intestine contain large amount of water, dissolved salts, undigested material. Small intestine से large intestine में जो material आया है, उसमें water है बहुत सा, dissolved salts है, और undigested material है. इसमें से water and salts are absorbed into the blood. जो सबसे अहम काम large intestine perform करता है, वो उस मैटर में से, उस मटेरियल में से जो स्मॉल इंटेस्टाइन में से आया है, उसमें से वाटर और सॉल्ट को ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली जाता है, while the undigested material is rejected as feces. और बाकी जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो फीसेस बन जाते हैं. फीसल मैटर कंटेन, तो जो फीसेस होते हैं उसमें क्या कुछ रह जाता है? लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, प्लांट फाइबर्स, सेलुलोज वगैरह जो अनडाइजेस्टेड रहा, फ्लोट ऑफ म्यूकस सेल्स, जो म्यूकस सेल्स लार्ज पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की इनर लाइनिंग से म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल जो हैं वो उनकी डेथ होती रहती है, वो ब्रेक होते रहते हैं, वो भी उसमें शामिल होते रहते हैं, वो भी उस मैटर के अंदर शामिल है. इसके अलावा म्यूकस, कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, वाटर, ये फीसेस के कंटेंट्स हैं. तो सबसे अहम काम, जैसे मैंने बताया कि लार्ज इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स है. देन यहां दो डिसऑर्डर का जिक्र किया है. If the absorption of water and salts does not take place due to infection, drug action or emotional disturbance, अगर कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं हो पाते इन्फेक्शन की वजह से, किसी ड्रग एक्शन, दवाई के एक्शन की वजह से, या इवन इमोशनल डिस्टर्बेंस, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस है, कोई परेशानी है, टेंशन है, उस सूरत में भी वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं होता. और अगर वाटर और सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं होते तो फेसेस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड बाहर निकलते हैं. इस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है. If water and salts are not absorbed in the large intestine due to
infection, drug action, or emotional disturbance. Liquid feces are removed. This condition is called diarrhea. And if this condition is unchecked, dehydration develops that may prove to be fatal. अगर इसको चेक ना किया जाए, मेडिसिन ना ली जाए, ट्रीटमेंट ना ली जाए, तो वाटर का लॉस हो जाएगा, बहुत सारा सॉल्ट की कमी हो जाएगी, वाटर का लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी और इससे डेथ भी हो सकती है, ये जानलेवा भी हो सकता है। ये तो डायरिया तो उस सूरत में होता है जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं होते, लिक्विड की फॉर्म में फीसेस बाहर निकलते रहते हैं। इसके अपोजिट कंडीशन है, समटाइम वाटर कुछ ज्यादा ही एब्जॉर्ब हो जाता है। उसकी वजूहत कोई भी हो सकती है, या तो हम वाटर पीते कम है, पानी पीते कम है, या प्लांट जो फूड है उसमें फाइबर की कमी है, फूड जो हम खाते हैं उसमें फाइबर की कमी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या कोई इवन मेडिसिन का असर है, तो बस औकात वाटर ज्यादा ही एब्जॉर्ब हो जाता है, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। इसमें फूड जो फीसेस हैं वो ज्यादा ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं, उनको डेफिकेट करना, उसको निकालना मुश्किल हो जाता है, हार्ड हो जाते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन। ये दो डिसऑर्डर थे लार्ज इंटेस्टाइन के, डायरिया, वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, और कॉन्स्टिपेशन, वाटर ज्यादा ही एब्जॉर्ब हो जाता है। देन लार्ज इंटेस्टाइन का एक और अहम फंक्शन है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। Large intestine also harbors a large population of useful bacteria. Large intestine में बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया रहते हैं, वो विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, खासतौर पर विटामिन के, which is absorbed in the blood. Then the last part of the large intestine, rectum, where feces are temporarily stored and rejected through anus at interval. Large intestine के पार्ट कोलोन से मुख्तलिफ, कोलोन के मुख्तलिफ पार्ट से होती हुई जो अनडाइजेस्टेड मैटर है वो मूव करता है पेरिस्टाल्सिस के जरिए, वहाँ वाटर और सॉल्ट आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होते जाते हैं और आखिरकार फीसेस जो हैं वो रेक्टम में पहुंच जाते हैं, और रेक्टम के जरिए, रेक्टम से फीसेस जो हैं वो एनस के जरिए बाहर निकालते जाते हैं वक्फे वक्फे से। Anus is surrounded by two sphincters. एनस के बाहर जो, एनस जो है वो ओपनिंग है रेक्टम की एक्चुअली, एनस के बाहर दो मसल के रिंग होते हैं जिनको एनोरेक्टल स्फिंक्टर बोलते हैं। इनमें जो इंटरनल रिंग होता है वो स्मूथ मसल्स का होता है, और आउटर जो है वो स्टिप्ड मसल्स होते हैं। Under normal condition, as the rectum is filled with the feces, it gives rise to defecation reflex. जब रेक्टम फीसेस से फिल हो जाता है, it gives rise to defecation reflex, mean urge to defecate पैदा होती है, रिमूव करने की, खारिज करने की, डेफिकेट करने की रिफ्लेक्स पैदा होता है, अर्ज पैदा होती है, ख्वाहिश पैदा होती है। This reflex can be consciously inhibited in individual other than infants. जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है, अर्ज टू डेफिकेट जो है, ये इसको कुछ देर के लिए रोका जा सकता है, कॉन्शियसली इनहिबिट किया जा सकता है इन इंडिविजुअल अदर देन इन्फेंट्स। शीख और बच्चों के अलावा बाकी लोग इसको कुछ देर के लिए रोक सकते हैं। Gradually the child learn to bring this reflex under control. बच्चा भी तकरीबन 2-3 साल में या उससे पहले इस रिफ्लेक्स को
अपने कंट्रोल में लाना सीख जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द लास्ट पार्ट रेक्टम, हियर इट इज एनस, और दिस एनोरेक्टल जंक्शन जो है, यहाँ पर मसल का रिंग है। ये मसल का रिंग बाहर वाले इंटरनल, ये स्मूथ मसल है, और जो एक्सटर्नल रिंग है ये स्फिंक्टर मसल जो है, ये स्टिफ मसल है। एक्चुअली ये मसल का रिंग जो है, जो स्फिंक्टर है, इट होल्ड द फीसेस विद इन द रेक्टम। दिस इज ऑल अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। थैंक यू वेरी मच।